Welcome, guys, in my new lecture. So, in this lecture, we are going to start our uh, social behavior administrative sciences module. So, जैसे आपकी डिमांड के ऊपर हमने जो है इसके क्वेश्चंस लाए हैं and this module is very important for your PBC exam, which is for Canada, and your second is DHA exam, which is for Dubai or Saudi. So, you can learn different perspectives that how you can communicate with the patient and how you can communicate with the customers on your shop or retail pharmacy. And if you are working as a retail pharmacy, I hope you have a better ethics and communication skills with those patients and you are well experienced. If you are not experienced, then don't worry, you should learn concepts of ethics and how you can uh, interact with the patients this lecture. So I hope you will get fruitful information from my lecture. So first question is, a 23-year-old patient comes to see you in the clinic and she had several positive home pregnancy tests which are confirmed by urine dipstick in your office. She admits to being intoxicated and having unprotected intercourses with her husband 2 months ago. She is still in school and not ready to start having a family, and she asks if you can recommend a doctor for her to see about an abortion. She admits that her husband drove her today, is in the waiting room, and is ecstatic. And at the prospect of being a father, he is absolutely opposed to her having an abortion. What are your legal obligation? So ये क्वेश्चन जो है एक नॉर्मली आप समझ सकते हो कि जो है वो अभी अपने मतलब फैमिली बनाने के लिए रेडी नहीं है, बट ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेज एंड शी गॉट प्रेग्नेंट एंड वो सलाह लेना चाहती है कि डॉक्टर से क्या रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए अबॉर्शन के लिए, बट उसका जो हस्बैंड है वो अपोज कर रहा है कि यू शुड नॉट हैविंग अबॉर्शन. सो आपके ऊपर ये आपसे पूछा जा रहा है एज ए फार्मासिस्ट, सो व्हाट आर योर लीगल ऑब्लिगेशंस. So which is very important. First is none. You don't have to discuss anything with the husband. Second is you must inform both the husband and the wife if the risk of abortion, allow them to decide together. So see, in foreign countries, women have a right to make a decision what she wants. If she wants to abort, and doctor will allow to abort. So it depends upon the situation, but in this case, the risk of abortion allow them to decide together. Ultimately, the decision belongs to the wife. Yes, you must inform both the husband and the wife, and if she still wants to proceed, he may obtain a court order to prevent the abortion. Find out more about why she wants an abortion and try to convince her. However, she has already mentioned uh, in the question that she is, studying at school, and I think yes, they have written. She is still in the school, so she is not ready to start having a family, right? So that's why the answer is A. Why? Because I said in foreign countries the female have a right to, know, उसको अपनी आज़ादी है कि उसको क्या करना है, कि उसको करवाना है अबॉर्शन कि नहीं करवाना है। कोई ज़रूरत नहीं होती डिस्कस करने की कि आप कुछ भी उसके हस्बैंड के साथ। सो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, यू डोंट हैव एनी थिंग to discuss with their husband. Okay, so this is an important one now. So option is A is correct, but why? So because when it comes to decision about pregnancy termination, we have also MTP Act, India Medical Termination Pregnancy Act. So when it comes to decision about the pregnancy termination, the father does not have veto rights. Yes, so father have no rights. However, female mother have a full rights to do anything. Either she wants abort, either she wants to conceive. So it depends. Okay, so that's why you don't have to discuss anything with the husband. So that the option A is correct. Okay, so the second question is, 81-year-old Chinese speaking woman is brought to the office by her daughter due to the cough and dry cough, weight loss, hemoptysis, and the chest x-ray suggests that the tumor, and physician recommends a diagnostic bronchoscopy. The physician explained the reasons for the bronchoscopy and the risk for the procedures to the daughter, who is fluent in both English and Chinese. The daughter translates the information into Chinese and indicates that her mother agrees with the plan.
which of the following is the most appropriate course of action in obtaining informed consent? So informed consent is one of the form. You have to give the information in a detail. बट अभी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो आपको जो है एग्जाम में जो है आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा, सो दैट आप थोड़ा सा जो है फेमिलियर हो जाइए लेंदी क्वेश्चन को पढ़ने का, क्योंकि आपको लेंदी ही क्वेश्चंस दिखेंगे सोशल बिहेवियर के एग्जाम में। सो आप जो है फेमिलियर हो जाओ। अगर आप डीएचए के लिए दे रहे हो, सो आई नो दैट डीएचए स्टूडेंट्स आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट यू शुड make habits to read everything in English. Okay, so इधर क्वेश्चन का यही मतलब है कि जो डॉक्टर उसकी विमेन को जो है डॉक्टर के पास लेके आई है, एंड जो उसकी मदर है वो सिर्फ चाइनीज ही बोलती है, शी नोज चाइनीज अदर देन चाइनीज, शी डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज। सो डॉक्टर ने जो है उसकी डॉक्टर को बताया है कि ये जो प्रोसीजर है इसके ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस ये हो सकते हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस ब्रोंकोस्कोपी एंड ऑल। सो इसमें कौन-सा आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है ताकि आप जो है उसके इन्फॉर्म्ड कंसर्न ले सको। आई मीन पेशेंट से अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सको। सो एक आईसी फॉर्म होता है इन हॉस्पिटल, यू सी इफ यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल यू नो, सो वो आपको भरना होता है। सो फर्स्ट इज आस्किंग द डॉक्टर टू विटनेस द इन्फॉर्म्ड कंसर्न फॉर्म। नाउ बिकॉज़ पेशेंट हैज़ अ राइट टू नो, राइट? तो जो पेशेंट है उसको पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्यों कर रहे हैं ब्रोंकोस्कोपी, क्यों ये डायग्नोसिस किया है, क्यों ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। सो पेशेंट हैव अ राइट। हाउएवर डॉक्टर इज फाइन, वो कुछ भी कर सकती है। वी डोंट यू नो एज ए डॉक्टर वी डोंट बिलीव ऑन एनीवन। सो आस्किंग द पेशेंट टू रिपीट बैक व्हाट शी हैज अंडरस्टूड यूजिंग द डॉक्टर टू ट्रांसलेट। नाउ so having the doctor translate any question that patient may have, having the patient read and sign a Chinese language version of the consent form. Yes. So these, if you see these options, and the answer is physician are obligated to provide a trained medical interpreter. Yes. So I have not mentioned the option, but the right option is, you know, there is an option of translator, right? Translator. So if you see any option having, they have mentioned about the translator कि जैसे यहाँ पे मैंने explanation में बताया आंसर ई, आई मीन आंसर डी ही होगा, बट आई हैव रिटन समवेयर डिफरेंट। बट फिजिशियन जो है obligated to provide a trained medical interpreter when the patient speaks a different language. Yes. So इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि जो डॉक्टर है उसको एक जो है ट्रांसलेटर को लेना पड़ेगा, जो मेडिकल इंटरप्रेटर हो या ट्रांसलेटर जो कि चाइनीज लैंग्वेज में उस वीमेन को बताए कि अ, हम आपका ब्रोंकोस्कोपी करने जा रहे हैं और आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, और जो है इसका प्रोसीजर ऐसा रहेगा, ठीक है? जिसकी वजह से जो है एक ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर बना रहे, राइट? सो दैट्स व्हाई जो है अ, हम जो है ये फ़ॉलो अप करते हैं, ना कि फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के ऊपर हम भरोसा करते हैं इन अवर मेडिकल सिनेरियो, राइट? क्योंकि वी डोंट नो हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग टू द पेशेंट, बिकॉज़ मे बी डॉक्टर डोंट नो अबाउट द चाइनीज़ लैंग्वेज, राइट? सो इस कारण जो है हम एक इंटरप्रेट लेते हैं जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है, इवन वो ना उस पेशेंट के लिए को जानता है, ना वो हमें जानता है। सो दे आर न्यूट्रल इंटरप्रेटर। तो वो कुछ भी जो है अपने से नहीं बनाएगा, जो उसको बोला जाएगा वो वही चीज़ जो है पेशेंट को बताएगा। सो दैट्स व्हाई जो है हम एक इंटरप्रेटर को हायर करते हैं और वो जो है ट्रांसलेट करता है वीमेन को कि चाइनीज़ लैंग्वेज में, देन जो है प्रोसीजर फॉलो। नेक्स्ट इज़ कौन सी कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम हॉस्पिटल फार्मूलेरी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी जो होती है उसमें से ड्रग्स को रिमूव करने की रिक्वेस्ट जो होती है वो कौन सी कमेटी करती है? हॉस्पिटल पेशेंट सेफ्टी, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी कमेटी, या हॉस्पिटल क्लिनिकल रिसर्च, या फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। सो यू नो, सो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का क्या रोल होता है, यू नो। तो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी जो है वही रिस्पॉन्सिबल होती है जो पूरी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को डिज़ाइन करती है, मैनेज करती है और डिलीशन एडिशन करती है। और अगर अदर्स कमेटी के बारे में जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल पेशेंट सेफ्टी कमेटी, जिनका सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। और अगर हम मोर्बिडिटी कमेटी को देखें, पेशेंट की डेथ जो हो रही है उसके केसेस को रिव्यू करना, डाटा रखना, ठीक है? और
क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना वो सारा किसका रहता है, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कमेटी का। हाउएवर जो हॉस्पिटल क्लिनिकल रिसर्च कमेटी होती है, इसका काम होता है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, रिसर्च प्रोटोकॉल्स हैं, एथिकल कंसिडरेशंस फॉर क्लिनिकल स्टडीज हैं, उनका सारा मैनेज जो है वो ये कमेटी करती है। ठीक है, तो इस कारण जो है डिफरेंट डिफरेंट कमेटी हैव डिफरेंट वर्क रोल। ओके, सो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास फार्मेसी डिपार्टमेंट नीड्स टू डिजाइन अ सिस्टम टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ ड्रग थेरेपी टू द पेशेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम शुड द फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑपरेट। तो मतलब उसको अपनी जो है वैल्यू जो है ड्रग थेरेपी की पेशेंट तक जो है मैक्सिमाइज करनी है, वो बढ़ानी है। ठीक है, तो वो कैसा एक सिस्टम को तैयार करें, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम लगवाए, जहाँ फार्मेसी बेनिफिट मैनेजमेंट करे, जहाँ फार्मेसी नेटवर्किंग और बारकोडिंग सिस्टम लाए, या फिर कम्युनिकेशन विद द प्रिस्क्राइबर एंड द थेरेपिस्ट। प्रिस्क्राइबर मींस डॉक्टर। ओके, किसके साथ वो क्या करे, तो अगर आप आंसर देखोगे तो फार्मेसी बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अल्टीमेटली क्या चाहिए, बेनिफिट ही चाहिए, तो वो मैनेज क्या करेंगे, बेनिफिट ही मैनेज करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम अदर ऑप्शंस पे जाते हैं, पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। तो इसका काम जो होता है वो होता है कि सेफ्टी के ऊपर, कि कैसे हम जो है सेफ्टी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितने एडीआर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर इनका फोकस रहता है कि एरर्स ना हो। और फार्मेसी नेटवर्किंग और बारकोडिंग सिस्टम जो है ये डिस्पेंसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कम्युनिकेशन विद द प्रिस्क्राइबर एंड थेरेपिस्ट, यस इट्स हेल्प टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन, बट इट डजंट able to maximize the therapy on its own, so that's why we have to focus on the pharmacy benefit management। उस पूरी चेन में हमें जो है प्रिपेयर रहना पड़ता है। हर एक चेन में जो पर्सन होता है वो इन्वॉल्व होता है, जो भी पूरा सिस्टम है उसको ऑपरेट करने वाला, वो सारा सिस्टम जो है हमें मैनेज करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, मार्केटिंग कंपनी रिलीजेस अ न्यू प्रोडक्ट एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव सेड टू द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द मेडिसिन एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर मार्केट सर्वे। तो मतलब जो उन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो फार्मासिस्ट को बोल रहा है कि जब आप ड्रग दे रहे हो और बट उससे जो है मार्केट सर्वे करवाओ और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। तो फार्मासिस्ट का क्या रिएक्शन रहेगा इस बात पे। तो पहला ये है कि फार्मासिस्ट जो है वो रिफ्यूज कर देगा, बिकॉज इट्स नॉट द हेल्थ प्रमोशनल गोल। वो रिफ्यूज कर रहा है because of unclaimed information। Pharmacist accept the offer, pharmacist deny the option। So you have a four option, you have to click on first option। So आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि ऑप्शन जो है ए सही है, क्योंकि ये कोई हेल्थ प्रमोशन का वो नहीं, गोल नहीं है कि आप हेल्थ प्रमोट भी कर रहे हो और सर्वे ले रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते एट एनी कॉस्ट। सो first, a pharmacist refuses because of unclaimed information. Yes, it's misleading. The issue is not about information being unclaimed, right? So, pharmacist accept the offer unethical. Yes, it's unethical. अगर वो accept करता तो ये unethical, आप किसी की information ले रहे हो, this is totally unethical without any government approval। Pharmacist denied the option. It's unclear. Actually, it doesn't directly address the ethical concern, but yes, you can deny. But why you are denying, you can mention that point. That is more important. Okay. So this is for today. We can meet in our next lecture, and I hope you got some information and some idea how and what type of questions are coming in the DH and PEBC exam। So please आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करो उन दोस्तों तक जो दोस्त जो है DH और PEBC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जल्दी ही सेकंड लेक्चर भी इसका लेके आएंगे, और होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।